Let us revise. Development of stamen, development of anther, and development of male gametophyte. Development of stamen, development of anther, and development of male gametophyte. Right? Chalo. Name the whorls which protect the essential whorl. Calyx, corolla. Development of stamen starts in flower bud condition. The very young anther has how many lobes? Very young anther has how many lobes? 1. When it is growing, it develops into 2 lobes. When it is growing, it develops into 2 lobes. Which is the wall layer? Which is the outermost wall layer present around the anther? Epidermis. Which is the outermost wall layer? Epidermis. Epidermis encloses. Epidermis के अंदर क्या होता है? All homogeneous cells. All homogeneous cells. Right? These homogeneous cells are similar in structure as well as function. That's why the word is homogeneous. Okay then. The developing anther has how many lobes? 2 lobes. How many sporangia? 4 sporangia. Okay. Now, these sporangia are like 4 tunnels. Each lobe has 2 sporangia and they are the tunnels present in the anther lobe. Okay. Which is the first cell differentiated in the homogeneous layer? The first cell differentiated, archesporium. Archesporium is enclosed by, archesporium को covering किसने दिया है? Epidermis. Archesporium is covered by epidermis. First division, or how the archesporium cell divide? Outer wall divide periclinally, inner wall divide anticlinally. Outer cells divide periclinally, inner cell divide anticlinally. Because of periclinal division, which wall layers develop? Archesporium divide periclinally to develop which wall layer? Endothecium, middle layer, tapetum. Endothecium, middle layer, tapetum. चलो रिवीजन क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. What we discussed? How pollen develop in the anther. बराबर? तो अभी हमने क्वेश्चन किए थे. First cell differentiated in the anther is archesporium. Archesporium gives outer wall layers, endothecium, middle layer, tapetum. Inner sporogenous cell. Sporogenous cell ultimately give you pollen mother cell. So, sporogenous cell which are inner. Anther में innermost, pollen sac का innermost layer. राइट एंथर के अंदर पोलन सैक के अंदर ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड रीडिवाइड टू फॉर्म मेनी पोलन मदर सेल. इफ वी टॉक अबाउट, चलो बोलते हैं, 1 पोलन मदर सेल. हाँ, टेल मी, पोलन मदर सेल डिवाइड बाय विच सेल डिवीजन? यस, पोलन मदर सेल डिवाइड बाय meiosis. In meiosis, one meiosis, how many baby cells are formed? 4. Very correct. So 1 PMC gives how many microspores? 4. What is morphology of this microspore? What is structure? चलो बोलो. Outer wall, exine, correct. Then inner wall, entine. Chemical बोलो exine का? Sporopollenin. Good. Chemical sporopollenin. Biologically very resistant chemical, degradation के लिए बड़ा resist करता है. Okay, so it is sporopollenin. Sporopollenin is making up exine and entine is made up of, yes, entine is made up of pectin and cellulose, pectocellulosic. Entine is pectocellulosic. चलो ये 2 cell pollen बोलूं कि 1 cell pollen बोलूं इसको? देखो ना, exine, entine, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस. So very correct, it is 1-celled pollen. 1-celled pollen is only 1-celled pollen को ही हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे.
One-celled pollen is microspore. Two-celled pollen cannot be microspore. Right? Chalo, then we talk about germ pore is present on. Germ pore is present on. Exine का pore है वो कि entine का? Exine का. So it is present on exine. It is not a pore of entine. Germ pore is present on exine. It is not pore of entine. तो देखो, जैसे आप बोलते हो कि वॉल को डोर होता है, वॉल का होल, वॉल जहां पे नहीं है वहां पे डोर है. So whole of a wall is a door. Door is the area where wall is absent. So germ pore is the area where exine is absent. So door is pore of wall. Door is present on wall. Right? Okay. So germ pore is pore of exine. Germ pore is present on the exine outer wall. Germ pore is the area where entine is present. Germ pore is the area where exine absent. Right? चलो फिर ये जो वन सेल पोलन है, दिस वन सेल पोलन, ओके, माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर के ग्रुप को हमने क्या बोला था? 4 के ग्रुप को हमने क्या बोला था? मैंने पर्पसफुली पेन का कलर बदला है, अगर आपने नोट किया है तो. डिप्लॉयड के मैंने ब्लैक पेन यूज किया है, हैप्लॉयड के लिए मैंने ब्लू पेन यूज किया है. सो ग्रुप ऑफ 4 पोलन इज कॉल्ड, बोलो, टेट्राड. कौन से प्रकार का टेट्राड बोला था? याद है? कैसे टेट्राड बोला था? 1 2 3 एंड इट इज प्रेजेंट लाइक दिस. तो इसको हमने क्या बोला था? टेट्राहाइड्रल टेट्राड. टेट्राहाइड्रल टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप. Then they will be released, okay, and we are talking about 1 microspore now. बराबर? चलो बोलो, 1 माइक्रोस्पोर का कौन सा सेल डिवीजन हुआ? वेरी करेक्ट. यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन हुआ? माइटोसिस. फर्स्ट माइटोसिस टू फॉर्म व्हाट इज A and B? व्हाट इज A and B? राइट. ओके, अगर मैं बोलती हूं कि B से आगे जाके 2 सेल मिलने वाले हैं, B डिवाइड होगा और आगे के सेल मिलेंगे, तो A क्या होगा? A will be vegetative cell. What is B then? B is generative cell. Which one is smaller? Generative cell is smaller, vegetative cell is bigger. चलो मैं इसको अगर 2 cell pollen बनाऊं तो ये शब्द हटा देती हूं. Now this is 2 cell pollen which is developing into male gametophyte. Which is developing male gametophytes in it. तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. 1 सेल पोलन, गैमेटोफाइटिक फेज शुरू हो गई. 2 सेल पोलन, गैमेटोफाइटिक फेज ग्रो हो रही है. 3 सेल पोलन, गैमेटोफाइटिक फेज मैच्योर हो गई. 1 सेल पोलन, हैप्लॉइड फेज शुरू, गैमेटोफाइटिक फेज शुरू. 2 सेल पोलन, गैमेटोफाइटिक फेज इज ग्रोइंग. 3 सेल पोलन, गैमेटोफाइटिक फेज इज मैच्योर. तो 2 सेल पोलन को हमने क्या बोला था? एक छोटा सेल और दूसरा बड़ा सेल. राइट? बड़े सेल को बोला था वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को बोला था जनरेटिव सेल. ओके, जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड होगा टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स. एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट. ओके, ये कैसे प्रेजेंट रहेंगे? चलो अब ये 2 सेल का हम 3 सेल बनाते हैं इसको. देखो, ये 2 सेल पोलन पॉलिनेशन को गया. पॉलिनेशन के जाने पर एंथर से ट्रैवल होके स्टिग्मा पे गया. स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट हुआ. राइट? वहां पे शुगर सिक्रीशन वगैरह स्टिग्मा पे जो थे वो एब्जॉर्ब किए. पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ. पोलन ट्यूब इज एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन and growth of pollen tube on the stigma is called pollen germination. So this is the process of pollen germination. 2 cell pollen go for pollination. Pollen received on stigma by the process of pollination, it gets sugary secretion, it grow over there, pollen germinate, and then this entire content is poured in. ये पूरा साइटोप्लाज्म पोलन ट्यूब में पोर होगा. और ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो यहाँ पे था, वो ट्रैवल होके पोलन ट्यूब में गया. So the vegetative cells nucleus which is present in pollen tube is now called tube nucleus. It is now called tube nucleus.
ओके, विच इज फॉलोड बाय जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल पहले वॉल को अटैच होता है, जनरेटिव सेल पहले वॉल को अटैच होता है, फिर ये फ्री फ्लोटिंग हो जाता है और फिर ये पोलन ट्यूब में आ जाता है। पहले वॉल को अटैच है, फिर फ्री फ्लोटिंग है, फिर पोलन ट्यूब में आ गया और उसका डिवीजन पोलन ट्यूब में होगा मेल गैमेट बनाने के लिए। तो जनरेटिव सेल का माइटोसिस नंबर 2 पोलन ट्यूब में हुआ टू गिव पोलन ट्यूब के अंदर के 2 मेल गैमेट। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, ये बड़ा है वेजिटेटिव सेल, इसके अंदर है ये 2 मेल गैमेट। जनरेटिव सेल से मेल गैमेट बने तो ये डिवाइड हो गया, अब नहीं है। जनरेटिव सेल डिवाइड इटसेल्फ टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। तो बड़े वेजिटेटिव सेल के अंदर ये 2 मेल गैमेट्स हैं। तो अब ये कितने सेल हो गए? बड़ा वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट, सो दिस इज 3-celled पोलन। याद आ रहा है? ओके, इट इज 3-celled mature male gametophyte। mature male gametophyte। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल है, मेल गैमेट्स है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स है। ओके, सो 1-celled pollen, 2-celled pollen, 3-celled pollen is representing gametophytic generation, that is haploid generation। gametophytic generation, haploid generation। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, 2-celled pollen is mature pollen, 2-celled pollen is mature pollen and 3-celled pollen is a mature male gametophyte। 3-celled pollen is mature male gametophyte and 2-celled pollen is ready for pollination, is a mature pollen। Got the thing, right? Revision हो गई। Now come to next part, that is carpel। pistil, उसके अंदर के ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओके, जो आपने फिर से मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सीखा है। ओके, ये एक बार आपके पास लिखा हुआ है, अगर कोई मिसिंग पॉइंट है तो कंप्लीट कर लो। ओके, यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 PMC अंडरगो 1 meiosis and 2 mitosis। 1 PMC undergo 1 meiosis and 2 mitosis to form male gametophyte। 1 PMC undergo 1 meiosis and 2 mitosis to develop male gametophyte। ओके, प्लीज चेक, क्रॉस चेक। वो जो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया था इसके पहले, उसमें कोई पॉइंट मिसिंग है क्या, देख लो। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। See, this is a female sex organ। This is female sex organ। फीमेल व्रल गाइनोशियम इससे बना है। इसको हमने कौन से शब्द यूज किए? इट इज कार्पेल, also called pistil। कार्पेल also called pistil। पिस्टिल के 3 पार्ट बोलो। 3 parts of the pistil, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पिस्टिल के 3 parts बोलो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। राइट, नाउ this stigma, style, ovary are 3 parts of the pistil। चलो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी लेबल कर दिए। स्टिग्मा is upper enlarged area on which the pollen will deposit। स्टिग्मा के अलग अलग प्रकार होंगे। ओके, स्टिग्मा अलग अलग प्रकार के पोलन ट्रैप करेगा, उसके लिए अलग अलग डिजाइन होंगे, दैट विल डिस्कस। But stigma's function is to trap the pollen। So stigma pollen को receive करेगा। Style is a tubular elongated part which is raising height of stigma। Okay, stigma पे pollen हवा से आके गिरेगा, इंसेक्ट लाके गिरेगा,
तो उसको रिसीव करने के लिए उसको हाइट एनलार्ज करना है। सो हाइट बढ़ाने वाला स्टिग्मा को प्रोट्रूडिंग बनाने वाला स्टाइल होता है, राइट। स्टाइल का और एक काम है, पोलन ट्यूब, पोलन यहाँ पे रिसीव होगा, पोलन ट्यूब ग्रो होगी, जर्मिनेट होगी। So pollen germination occur on stigma and pollen tube grows through style. Stigma's function to receive the pollen. Style function to raise the height of the stigma and allow growth of the pollen tube. Basal's pollen part is ovary. Basal's pollen part is ovary which encloses ovule. Okay, ovule का structure डिटेल में सीखते हैं। ओवरी और ओव्यूल के रिलेटेड आपने मॉर्फोलॉजी में एक शब्द सीखे था, प्लासेंटेशन। Ovule present in the ovary is attached to wall of the ovary. The word is called placenta. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल का स्टॉक, ओव्यूल का स्टॉक ओवरी को जो पॉइंट पे अटैच्ड है वो पॉइंट को बोलते हैं, ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्लासेंटा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्लासेंटा। प्लासेंटा इज अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल. Arrangement of placenta within the ovary is called placentation. Arrangement of placenta within the ovary is called placentation. Placentation के अलग अलग प्रकार सीखे हमने। चलो देखो ये कौन सा प्लासेंटेशन है, थोड़ा याद करो मॉर्फोलॉजी। देखिए देखो, ओवरी के बेस को ये अटैच्ड है और नीचे इसका फ्लावर का स्टॉक है, नीचे इसका फ्लावर का स्टॉक है, राइट। सो फ्लावर के बेस पे प्लासेंटा है, बेसल प्लासेंटेशन। फ्लावर का बेस थैलेमस, थैलेमस पे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल रेस्टिंग ऑन द बेस, द प्लासेंटेशन इज बेसल। ओके, बाकी के प्लासेंटेशन हमने क्या सीखे थे? मार्जिनल, वॉल पे है तो पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड एक्साइल प्लासेंटेशन। Okay, so arrangement of placenta within the ovary is called placentation. Okay, now come to detailed structure of ovule. It is very complicated and important. Straightforward 2 मार्क के लिए draw the ovule ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर draw the ovule and explain development of female gametophyte ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये ovule के अंदर female gametophyte एग बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। Okay, ovules are of 2 types. Ovules are of 2 types. One is orthotropous ovule and other one is inverted anatropous ovule. Straight is orthotropous, this one is inverted anatropous. So orthotropous ovule, anatropous ovule, there are a variety of types, we'll discuss. लेकिन अभी हमको फोकस करना है anatropous ovule पे, क्योंकि एंजियोस्पर्म में anatropous ovule बड़ा कॉमन है। Now anatropous ovule की डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने अभी आपको बोला। ओके, तो हम उसको सिंपल करके ड्रॉ करते हैं, राइट। कैसे ड्रॉ करेंगे? सी, ओव्यूल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक क्यूट सा क्वेश्चन मार्क दे दो। देखो मैंने कैसे इलिप्टिकल क्वेश्चन मार्क, ढब्बू क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। हाँ, अगर ढब्बू क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करूंगी ना मैं इस तरह से अड़वा, देन इट विल डेवलप इनटू ब्रेन का डायग्राम। आगे जाके मैं ब्रेन का डायग्राम सिखाऊंगी, राइट। तो ये क्वेश्चन मार्क से शुरू करेंगे। ओके, अगर ऐसा ओव्यूल है तो हमको ऐसे इलिप्टिकल, इलोंगेटेड, क्यूट सा शेप ओव्यूल का ड्रॉ करना है। सो दिस इज ओव्यूल, राइट। अब देखो, ये ओव्यूल को सबसे पहले ये साइड ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और ये दोनों में सिमेट्री ला लो, बराबर। ओके, तो मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया, अंदर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने इसको वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका स्टॉक ड्रॉ करना है। Isn't it like inverted flask-like structure? क्वेश्चन मार्क से डेवलप कर रहे हैं। अब कुछ नहीं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। आई रिपीट, पहले आपने एक क्यूट सा ओवल शेप क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया, फिर आपने इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ की और फिर आपने उसको स्टॉक ड्रॉ किया और इसमें थोड़ी सिमेट्री डेवलप की। याद है, राइट। सो दिस आर द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब हमको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। सी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहां पे जोड़ दी, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहां पे जोड़ दी।
राइट? ओके, तो पैरेलल लाइन से हम स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं. ओके, देन फिर से एक अंदर से पैरेलल पूरा लाइन ड्रॉ किया. पैरेलल लाइन ड्रॉ करते वक्त थोड़ा डिस्टेंस के बारे में सोचो कि सिमिलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना. देखो पूरा पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया. एंड नाउ इट इज ovule, that's it. Isn't it simple? Develop this diagram from question mark. एक क्यूट सा elliptical question mark मैंने ड्रॉ किया. ओके, और फिर स्टॉक पहले भूलो नहीं, स्टॉक पहले ड्रॉ कर लो. एंड देन द पैरेलल वॉल्स. ओके, ये इन्वर्टेड ओव्यूल का नाम क्या है? लेट अस लेबल इट फर्स्ट. इट इज anatropous ovule. Anatropous ovule. मेरे साथ ही ड्रॉ कर रहे हो आप लोग, मैं भी तो स्लो ड्रॉ कर रही हूं. मेरे साथ ही ड्रॉ करो. चलो, पहले क्वेश्चन मार्क, फिर स्टॉक, दो पैरेलल लाइंस और इस प्रकार से ओपनिंग. ओके, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ऐसे इनक्लोज्ड है. इसको हम कट करके ड्रॉ करेंगे. ये ऐसा इनक्लोज स्ट्रक्चर है. इसको हम लेंथ वाइज कट करके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे. इट इज इन्वर्टेड लाइक दिस. इसको लेंथ वाइज कट करेंगे. समझ रहे हो? तो दिस इज anatropous ovule, very common in angiosperm. That's completed, right? See, this stalk of the ovule is called funicle. Stalk of the ovule is called funicle. Right? Then this remaining part, this total part is called body of the ovule. This point of contact where stalk attaches to body, funicle attaches to body of the ovule, this point is called hilum. This point is called hilum. Right? Now, because of inversion, देखो ये बॉडी पूरा उल्टा घूम के आया ना नीचे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे एक्सटेंड हुआ और ये इतना फ्यूज है. बॉडी स्टॉक से इतना ये एरिया में फ्यूज है. बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. दैट पार्ट इज कॉल्ड रैफे. शब्द थोड़े उभर जाएंगे, डिफिकल्ट जाएंगे. द पार्ट इज कॉल्ड रैफे. बराबर? देन दिस coverings of the ovule, this is called outer covering. This is inner covering. Outer and inner. Okay, ये दोनों को एक शब्द है, that is integument. Outer integument, inner integument. The ovule is enclosed by two layers. दो integument, outer integument, inner integument वाला ovule. So this ovule is bitegmic. दो integument वाला two integument, bitegmic. In angiosperm, ovules are bitegmic. दो integument वाले. Ovule with two integument, bitegmic. मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो. लेबल कर दो क्या बाकी है. ओके, चलो देन यहां पे मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया. दिस टोटल सेंट्रल मास इज कॉल्ड nucellus. The central solid mass is called nucellus. Right? Now, ये nucellus को integument ने ऐसा कवर करके रखा है, लेकिन इधर से देखेंगे नीचे ये पोर है ना. सो nucellus is enclosed by integument from all the side except this pore. This pore is called micropyle. Pore of integument जैसे कवर्ड है, चारों साइड से कवर्ड है, बस ये अंदर का पोर है. दिस वन, राइट? सो ये चारों साइड से कवर है, ये अंदर का पोर है जहां से आपको पेन दिख रहा है.
That pore is called micropyle. Micropyle का opposite end, micropyle का opposite end, it is called चालज्झा. 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 Opposite end of micropyle is चालज्झा. Opposite end of micropyle is चालज्झा. I repeat, what we are drawing? Ovule. कहाँ से शुरू किया हमने? क्वेश्चन मार्क से. We draw the question mark, elliptical, बड़ा cute सा. Then we draw this line. We make it parallel, symmetry. Then we draw a stalk, and then we started drawing the parallel lines. Ovule तैयार. Stalk of the ovule, funicle. Remaining part, body. Body is attached to stalk at a point called hilum. Because of the inverted structure, the point of contact extend, and that entire part is called raphe. Okay, then the ovule is enclosed by two covering, outer integument, inner integument. Integument is covering the central mass called nucellus, excluding a pore. The pore is called micropyle. Opposite end of micropyle is चालज्झा. Opposite end of micropyle is चालज्झा. Right? Now, in this ovule at maturity, हाँ अभी मैं डेवलपमेंट नहीं सिखा रही हूँ आपको. जैसे ये मैच्योर होगा, तो इसके अंदर ये रेड कलर का जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसके पास चालज्झल एंड पे 3 सेल्स है, बीच में ये 2 न्यूक्लियाई और ये बीच का बड़ा सेल है, और यहाँ पे फिर से 3 सेल्स है. ओके, देखो ठीक से. हाँ, ये ऊपर के 3 सेल टूवर्ड्स चालज्झा, नीचे के 3 सेल टूवर्ड्स माइक्रोपाइल. इसके बीच के सेल को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूं बिकॉज इट इज एग. बिकॉज इट इज एग. बराबर. देन टोटल रेड कलर के स्ट्रक्चर को, ये 3 सेल को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल. कितने हैं ये? 3 एंटीपोडल सेल. ये बीच का सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल. बीच का जो है, और दूसरे नाम भी है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल. फिलहाल उतना ही ध्यान में रखो. टोटल रेड स्ट्रक्चर, 3 सेल्स टुवर्ड्स द अपर साइड इज 3 एंटीपोडल्स. बीच का सेंट्रल सेल. ये जो 3 सेल है यहाँ पे, उसमें का ये सेल और ये सेल दोनों, these are called 2 synergids. These 2 are synergid, and the middle one, this one is egg. So 3 cells towards the चालज्झा एंटीपोडल. बीच का सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल, और 2 ये बाजू के लैटरल सेल्स, सिनर्जिड. बीच का सेल एग. राइट. ये तीनों को पकड़ के 2 सिनर्जिड प्लस एग, इसको एक शब्द है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कर रही हूं मैं, इज कॉल्ड एग apparatus. 2 synergid plus egg is called egg apparatus. जो इरेज किया, फिर से दे रही हूं, लेबल माइक्रोपाइल. ओके, so see, टोटल बीच का रेड स्ट्रक्चर, 3 एंटीपोडल्स टूवर्ड्स 3 सेल टूवर्ड्स चालज्झा एंटीपोडल. बीच का बड़ा सेल, सेंट्रल सेल, एंड 2 synergids lateral एंड मिडल वाला एग इज कॉल्ड एग apparatus. इसको बोलेंगे एग apparatus. बराबर. अब देखो, ये टोटल स्ट्रक्चर
ये टोटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर वेट अ सेकेंड, ये टोटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 एंटीपोडल्स, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड और एग। ये टोटल स्ट्रक्चर कितने सेल है? लेट अस कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 cells are 7. How many nuclei? Nuclei कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8. So what I calculated here, this total structure is 7 celled, 8 nucleated. This total structure 7 celled, 8 nucleated is called embryo sac. Is called embryo sac. One more word for that is female gametophyte. सिर्फ रेड स्ट्रक्चर, हाँ, this red structure, this total red structure enclosing 3 cells towards Chalakza, 1 central cell with 2 nuclei, 3 cells towards micropyle egg apparatus. In the egg apparatus, 2 lateral cells, synergids, and the middle cell egg. Okay, so this entire 7 celled, कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर के 3, नीचे के 3, बीच का एक, 7 celled. न्यूक्लियाई कितने हैं? ऊपर के 3, बीच के 2, नीचे के 3, 3 + 2 + 3. Okay, so it is 7 celled 8 nucleated embryo sac called female gametophyte. 7 celled 8 nucleated embryo sac which is female gametophyte. Okay, so this is entire mature ovule which is present in ovary. Ovary is part of carpel. Carpel has stigma style ovary. Ovary के अंदर ovule और ये पॉइंट को हमने बोला प्लासेंटा. समझ रहे हो? राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम. ये 2 मार्क के लिए आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगी. कंप्लीट योर डायग्राम.